This lecture is being recorded. This is Sir Sibur Rahman, and this is our review or revision session. Session number one. First of all, we studied in this class pillars of English language, and I have been teaching this. I've been teaching on this pattern for the last 3 to 4 years because I have found it very much fruitful for the students. I have skipped something, मैंने कुछ चीजें skip कर दी है. Otherwise, it takes almost a month, more than a month. But जो चीजें मैंने अभी पढ़ाई है आप लोगों को so far in 9 lectures, they all are very very important for all of you. सबसे पहले पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. पिलर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या थे और क्या है? जिन लोगों ने पढ़े ही नहीं तो उनके लिए बिल्कुल एकदम 0 मीटर वाली बात है. ठीक है ना कि सर ये क्या है? देखो बेटा, व्हेन यू वांट टू लर्न अ लैंग्वेज यू हैव 6 पिलर्स. आपके पास 6 पिलर्स होते हैं, राइट? और आपको लाजमी तौर पर इन तमाम पिलर्स पे काम करना है. हमने बचपन से क्या किया है? हमने बचपन से एक ही पिलर के ऊपर काम किया है, वो थी आपकी ग्रामर. लाइक यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑन योर ग्रामर. दैट्स व्हाई आप थोड़े से इरिटेट होते हैं कि सर सॉरी. अक्सर लाइक आई हैव बीन रिसीविंग every day, like I've received inquiries. They, oh, we don't want to learn grammar. We have been learning grammar since childhood. We don't want to learn grammar. People think that grammar does not help us in speaking and writing because they have been learning grammar, and grammar has not helped them to speak fluent, good, correct, flawless English. So that's why they have got some irritation with grammar. असल में मसला क्या है? The what is the problem? That we have not studied about sound. We have not studied about syntax. Nobody has ever given us listening and reading activities, writing activities, speaking activities. वोकैबलरी शायद हम लोगों ने थोड़ी बहुत की है, लेकिन वोकैबलरी को भी उस अंदाज से हमें नहीं पढ़ाया गया जिस तरह से हमें पढ़नी चाहिए थी, यूज करनी चाहिए थी. बस डिक्टेशन होता था, वर्ड मीनिंग्स लिखवाए जाते थे, वर्ड सेंटेंसेस आ जाते थे, दैट्स ऑल. वो एक फॉर्मेलिटी थी. प्लीज टर्न ऑफ योर कैमरा. अक्सर का कैमरा ऑन हो गया गलती से, बफाल से बेटा. थैंक यू वेरी मच. मेरे पास पढ़ती है 98% लड़कियां ना. अगर मैंने उनसे कहा ना अपने कैमरे ऑन करें तो सब क्लास में बहुत लेट आएंगे, सब तैयार होने में लगी हुई. सॉरी सर, आई गॉट लेट. तो दैट्स मैंने आसान कर दिया सबके लिए. डोंट टर्न ऑन योर कैमरास, राइट? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट साउंड. साउंड पे बात करते हैं. अगर आप मेरे बहुत ज्यादा डिटेल्ड लेक्चर सुनना चाह रहे हो तो इसके हर लेक्चर को आप सुन लीजिएगा, ठीक है ना? मैं अभी बात सारी चीजों पे करूंगा, लेकिन क्योंकि रिवीजन सेशन है, पूरे 9 लेक्चर्स पे बात करनी है मुझे, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक पे जाऊंगा. अच्छा देखो, आई रिसीव्ड अ व्हाट्सएप फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स. सर, आई वांट टू improve my accent and I want to get fluency in my conversation. मैंने उनसे कहा आप मेरा पहला लेक्चर सुन ले, तो फिर आपको अपने इस पहले सवाल का जवाब मिल जाएगा. सो देखो बेटा, एक्सेंट इज गॉड गिफ्टेड, एंड एक्सेंट वी गेट फ्रॉम आवर L1. L1 is what? Your mother tongue, जो आपकी मम्मा की जबान है ना. So because if you are a Punjabi speaker, if you are Sindhi speaker, if you are Urdu speaker, it is compulsory that when you speak in English, it will have effect on
English language. Suppose when Punjabi speakers speak in English, they come across a word screen. But it is not the point of laughing that they say screen. Actually, Punjabi language has an effect on English language. In Urdu, like Urdu speakers, when they speak in English, are you coming now? I have listened to many students saying, "Are you coming now?" What is "na" here? I am learning English. Take. What is take? Like most of the Urdu speakers, they come up with different Urdu words in their conversation. Like Sindhi speakers, they have an effect of Sindhi in their language. So accent is given by birth. If you were born in London, you would have spent 10 years there and you would have come back to Pakistan, then you would have English accent. एक मिसाल आपके पास है आपके बिलावल भुट्टो. He is a Sindhi speaker. He was born in, I think, in Ghadi Khuda Baksh. He was born in Pakistan, but then he was sent to London for higher studies. He spent his almost all his life there. When he was a child, he was there. You know, 10 साल की एज होती है ना. If you spend your life uh, 4 years to 10 years, this is the development of your organs of speech. मैंने आपको बताया था ये जो organs of speech होते हैं, जो आपकी जबान है, आपका हलक, आपकी palates, teeth, they all are your organs of speech. In childhood they all are developing. ये बचपन में सब बन रहे होते हैं. अब मैं अगर 10 साल क्वेटा में रहने शुरू कर दूं, क्या मेरे अंदाज में पश्तो आ जाएगी? कभी भी नहीं आएगी. मैं पश्तो शायद सीख जाऊं, लेकिन मेरा साउंड, आई वुड नेवर साउंड लाइक अ रियल पख्तून. So, beta, similarly, if you learn English, if you start speaking English, you will never sound like an American or a Britisher. When I speak English, do I sound like an American? No, it's not possible. It's really not possible. हाँ, ऐसा है. If you give me visa and if you give me some money and ask me, sir, please go to London for 2 years with your family. After 2 years, you will see a very difference, a lot of difference in my accent. But that will be for the time being, not forever. If when I start living here again in my local environment, I will again speak like Pepsi. Huh? Pepsi, like in Karachi, some people say Pepsi, Pepsi aapke paas, something like that. You are not used to speaking. अच्छा अब सवाल ये है फ्लुएंसी. सर फ्लुएंसी तो आ सकती है ना. यस, इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. अगले हफ्ते से हमारा काम फ्लुएंसी पर ही होने वाला है. A3 के जो स्टूडेंट्स हैं, लाइक वी आर गोइंग टू वर्क ऑन फ्लुएंसी. हम बात करेंगे फ्लुएंसी पर. वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू इम्प्रूव फ्लुएंसी. बाय द एंड ऑफ लेवल 1 यू विल बी फ्लुएंट इंशाल्लाह. You have to try. I will keep trying. You have to try. That's why I'm also giving you a discussion class from tomorrow. कल से Monday, Tuesday, Wednesday आप लोगों की discussion class भी है. ठीक है? I will send you the topic and timings as well as. So fluency can be improved. That's not a problem. You can improve your pronunciation. At least come with a standard pronunciation. Don't be don't stick to yourself towards American and British. Just improve your pronunciation. Speak standard English. No matter American, no matter British English. पहले आप English को बोल लें. First speak English, then you come towards British and American English, right? You जो English आप बोलेंगे वो कोई ना कोई एक तो होगी ना, या तो British English में आएगी या American English में आएगी, लेकिन पहले आप English बोलें. First you have to speak in English. याद रखिए फ्लुएंसी कम्स फर्स्ट देन एक्यूरेसी. मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ, बेटा इस बात पे मत टेंशन लो कि तुम्हारे अंदर एक्यूरेसी आ जाए. जब मैं सही इंग्लिश मेरी हो जाएगी ना, फिर मैं बोलूंगी. ना 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 ना.
बोलो बोलोगी तो इंग्लिश सही हो जाएगी. If you speak, you will become accurate, right? You will have accuracy if you speak in English. भाई गाड़ी चलाने से आती है ना, दो चार जगह ठोकेंगे फिर पता चलेगा हाँ भाई ये गलती होती है. जब गलती करेंगे तो सीखेंगे ना. अभी आप गाड़ी में बस बैठे हुए देख रहे भाई को, हाँ बस जरा मैं आ जाए मुझे चलाना, फिर मैं चला लूंगा, हाईवे में निकल जाऊंगा. पहले गलियों में चलाते हैं, फिर भाई कहते हैं चलो मैदान में चलते हैं, फिर अंदर अंदर सोसाइटी में, फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बाहर ट्रैफिक सेंस आता है, देन मेन रोड्स, देन पप्पी के घर, ठीक है ना, फिर पूरे हर रिश्तेदार की फिर थोड़ा हाईवे चले गए, उसके बाद फिर आपको बोलते चलो आओ हैदराबाद, फिर पूरे पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता लाइक एक्यूरेसी आती है. इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू गेट एक्यूरेसी विद इन 2 months. समझदार लोग हैं आप लोग, राइट? यू ऑल आर सेंसिबल दैट इट्स नॉट पॉसिबल, it's not possible, it's not possible to get fluency. I mean, मुझे समझ नहीं आया लोग, why do the people ask for link again and again? My link remains same. कल मैंने सेल फोन चेंज किया है, तो वो पता नहीं मेरे सारे नंबर वैसे तो गूगल अकाउंट में सेव होते हैं, लेकिन कल पता नहीं क्या हुआ, लाइक आई कुडंट अपलोड माय synchronize my contact list, so it's a big loss. I have few contacts but most of the contacts are missing. तो मुझे याद समझ नहीं आ रहा कि कौन कौन है. यस, लिसनिंग इज लर्निंग. इम्प्रूव योर साउंड. मैंने आप लोगों को एक वीडियो सेंड की थी, दोबारा सेंड कर दूंगा जिन लोगों के पास ना हो. एक वीडियो लिंक सेंड किया था, उसमें प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव करने के लिए मैंने आपको वो वीडियो सेंड की थी कि उसमें 3000 ऑक्सफोर्ड के कीवर्ड्स थे. मुझे पता है किसी ने आज तक वो पूरी नहीं देखी होगी, जिसने देखी होगी उसने दोबारा नहीं देखी होगी. यू हैव टू लिसन टू इट एटलीस्ट 10 टाइम्स. वो 3 घंटे की है लिसनिंग, उसको आपको सुनना है रोजाना for 10 minutes. Every day you have to listen to it for 10 minutes. That will really help you to improve your pronunciation. पहले हम लोग स्टूडेंट्स को आईपीए पढ़ाते थे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट्स, ठीक है ना, और उसकी मदद से जो है वो स्टूडेंट्स अपनी प्रोनाउंसिएशंस को बेहतर बनाते थे. बट नाउ वी हैव स्मार्ट स्टडीज, वी हैव स्मार्टफोन्स, राइट? एवरीथिंग इज गेटिंग स्मार्टर डे बाय डे. अब आपके लिए चीज़ों को के तलफ़ुज़, वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस, तलफ़ुज़ को सीखना, समझना, सुनना बहुत ही आसान हो गया है. लाइक लुक एट दीज वर्ड्स. इसमें जो बहुत सारे वर्ड्स आप लोग, मैंने आपको सारे वर्ड्स बताए थे, जिन लोगों का आज पहला दिन है वो इन सारे वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को जरूर सुनिएगा. लिसन टू दीज वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन एंड यू विल बी शॉक्ड एंड रॉन्ग. डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन. अपने तलफ़ुज़ मत बनाएं, अपने तलफ़ुज़ मत बनाएं प्लीज. डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन. ऑलवेज कंसर्न अ डिक्शनरी और एन इलेक्ट्रॉनिक डिक्शनरी. पहले तो हम आईपीए के चक्कर में रहते थे, अब मैं कहता हूँ चलो ठीक है इग्नोर करो, नो प्रॉब्लम. एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट, यू कैन इग्नोर इट, ठीक है ना. डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन, डोंट मेक योर ओन स्पेलिंग. ये एडवाइस पहली, सबसे पहली एडवाइस थी हमारी. डोंट मेक योर ओन प्रोनाउंसिएशन. अपने तलफ़ुज़ मत बनाए, अपनी स्पेलिंग्स मत बनाए. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. सिंटेक्स, वर्ड ऑर्डर, अल्फाजों की तरतीब. सर ने आपको बताया था कि बेटा देखिए, 2 तरह के वर्ड्स होते हैं, कंटेंट वर्ड्स एंड स्ट्रक्चरल वर्ड्स. आपको पता है जिंदगी भर हमें कंटेंट वर्ड्स पे काम करवाया है हमारे टीचर्स ने. हमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, यानी ये वोकैबुलरी का हिस्सा होता है. यही हमारी जिंदगी में हमें लिखवाया गया है, समझाया गया है. जबकि हमारी जो मिस्टेक्स है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, वो है क्या? हमारी प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल वर्ड्स. Structural words are meaningless, but they help you to make, they give your sentence meanings. They are meaningless, but they make your sentence meaningful. ये होते मीनिंगलेस है भाई. देखो ना आप, ये जो मैंने बोल्ड येलो से हुए हुए हैं, हाईलाइट हुए हुए, इनको जरा पढ़ो.
यू विल से सर दे हैव नो मीनिंग्स, लेकिन इनके बगैर जुमला पढ़ो जो फिर आप ये कहेंगे सर क्या लिखा हुआ है, पढ़ ले आप। He went Lahore, his friend PIA attend important event cancelled, he came back train Sunday. आपने without, you read this sentence without structural words. Structural words are just like a string with the beads. धागा होता है ना, और आप लोग बीड्स होती है जो तस्बीह के दाने होते हैं, उसमें धागा सबसे इंपॉर्टेंट है ना। अगर वो धागा निकाल दे तस्बीह बिखर जाएगी। सेम विद योर इंग्लिश, अगर आप स्ट्रक्चरल वर्ड्स निकाल दें तो आपकी तस्बीह के दाने बिखर जाएंगे सारे। कंटेंट वर्ड्स है, पढ़ा उन्हीं पे जाता है, समझ आ जाएगी बात, एक एक दाना भी पढ़ लेंगे आप, लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ 33 हुए, कहाँ 66 हुए हैं। जब एक तस्बीह होती है तो उसमें सही पता चलता है, हाँ हिस्सा होगा पूरे। सो बेटा इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमारी सबसे ज्यादा गलतियां होती है आर्टिकल्स में, प्रेपोजिशंस में, कंजंक्शंस में और ऑक्सिलरी वर्ब्स में। मैंने संडे यहाँ से एक टॉपिक पढ़ा दिया अभी, ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा आएगा वो आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा, और अगर नहीं भी आया तो मैं अलग से आर्टिकल्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि आप लोग कहीं कहीं जहां जहां भी पेपर्स में बैठते हैं, कहीं भी पेपर्स में बैठते हैं, ये दो टॉपिक्स आपने देखा जरूर आते हैं, आर्टिकल्स एंड प्रेपोजिशंस, बिकॉज विदाउट दीज टू थिंग्स योर इंग्लिश इज इनकम्प्लीट। योर इंग्लिश इज इनकम्प्लीट विदाउट एन आर्टिकल, विदाउट प्रेपोजिशंस, ठीक है। फिर हम चलते हैं फॉर्मेशंस की तरफ। हमने फॉर्मेशंस पे जो बात करी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब। सर ने आपको बताया लाइक वी कैन मेक सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री वर्ड्स। हम इन तीन वर्ड्स की मदद से सेंटेंस बना सकते हैं। फिर और फॉर्मेशंस जो आपके सामने रखी वो ये थी कि हम एडवर्ब के बगैर जुमला बना सकते हैं, देख लीजिए बन गया सोनिया प्लेस क्रिकेट। हम ऑब्जेक्ट के बगैर जुमला बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है ना। और हम किसके बगैर जुमला बना सकते हैं, सब्जेक्ट के बगैर। लेकिन जब सब्जेक्ट के बगैर जुमला बनता है तो बेसिकली वो सेंटेंस कहलाता क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। और अगर आप एक खास रोशनी में देखें तो उस सेंटेंस में भी एक वर्ब सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है। वैसे कहा तो ये जाता है वी कैन मेक अ सेंटेंस विदाउट a subject, but there is always a subject which is hidden and which is definite, that's why it is not spoken, it is not written। लेकिन अगर वो विजिबल हो जाए, अगर वो लिखा जाने लगे तो इसका मतलब है आपको गुस्सा आ गया है। तुम अपना मुंह बंद रखो, यू कीप योर माउथ शट, डोंट यू स्टैंड अप, तुम तो खड़े ही मत हो, यू गेट आउट फ्रॉम माई रूम, ठीक है। तो जब आप गुस्सा हो जाते हैं तो गुस्सा होने के बाद आप यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद फिर हमने एक और फॉर्मेशन देखी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। फिर हमने यहाँ पर जब देखे तो दो ऑब्जेक्ट आ गए, तो संडे आपको एक नई कहानी सिखाई थी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टॉक्स अबाउट समथिंग, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टॉक्स अबाउट समबडी। समथिंग वर्सेस समबडी, यहाँ से आपको एक्सप्लेन भी किया था, समझाया भी था कि समथिंग टू समबडी होता है और समबडी समथिंग होता है, और डिक्शनरीज के अंदर अक्सर ये लिखा होता है समथिंग टू समबडी, समबडी समथिंग। क्या मतलब सर, ये देखो, आई आस्क a question, क्वेश्चन क्या है, समथिंग है। आई आस्क अ क्वेश्चन टू अली, जब समथिंग पहले आएगा तो अपने बाद टू लेकर आएगा, ठीक है ना। जब समथिंग पहले आएगा तो अपने बाद टू लेकर आएगा। अब अगर somebody पहले आ गया, आई आस्क अली अ क्वेश्चन, तो अब आपको टू की जरूरत है, somebody समथिंग, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर हमने एक बात इसमें बड़ी अहम और की थी, सर ये कभी एक ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, कभी दो आ रहे हैं, सर ये चक्कर क्या है। तो फिर हमने आपको ये चक्कर समझाया था, हमने कहा था कि आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेते हैं।
और कोई एक लेता है और कोई दो ऑब्जेक्ट लेता है। और ये भी बाकायदा हमारे पास इंफॉर्मेशन हमें कंपाइल करके बुक्स में दी गई है, ग्रामर बुक्स के अंदर, कि वो कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके बाद एक ऑब्जेक्ट आता है और कौन से वर्ब्स होते हैं जिनके बाद दो ऑब्जेक्ट आते हैं। और ऐसे वर्ब्स को हम ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। तो अब इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होंगे? इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। और मुझे एक जरा सोच कर आप सोचे और सोचते रहे कि कौन पैसिव वॉइस के अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? पैसिव वॉइस में सबसे पहला काम क्या होता है? सर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तो सब पैसिव नहीं बनेगा। इसका मतलब यह है इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेते। इंट्रांजिटिव वर्ब्स डोंट टेक ऑब्जेक्ट आफ्टर देम। सर जी बात सही कह रहे हैं, देखिए लिखा हुआ भी है, पैसिव नॉट पॉसिबल। ठीक है, फिर ये ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स की फिर आपने आपको एक बात भी बताई थी। देखे, ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट, समरी करके लिखा हुआ है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने पास ऑब्जेक्ट लेते भी नहीं है, ना उनके पास आ सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है, एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, दो ऑब्जेक्ट्स भी आ सकते हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब्स की आपको एक लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी थी। फिर हमारा एक और बड़ा अहम टॉपिक शुरू हो गया था, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है सबके सामने मौजूद है, सबको अब ये बात क्लियर हो रही होगी। सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये भी आपके पास सामने आ गई ये बात। सब्जेक्ट इज अ वर्ड विच परफॉर्म्स एन एक्शन। सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है। सर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट इज अ रिसीवर ऑफ एन एक्शन। और मैंने ऑब्जेक्ट के बारे में एक बड़ी अहम बात बताई थी, that object comes just after a verb। हमारा गलत कॉन्सेप्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में आता है। जी नहीं, ऑब्जेक्ट जुमले के आखिर में नहीं आता। जरा आप ये सेंटेंसेस देखें जो हाईलाइट हुए हुए हैं। अली हैज बीन लर्निंग इंग्लिश। इंग्लिश आपका क्या है? अंडरलाइन जो हुए हुए वो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, जो हाईलाइट हुए हुए वो आपके वर्ब्स हैं। वर्ब के फौरन बाद आपके पास क्या आ रहा है? वर्ब के फौरन बाद आपके पास क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट आ रहा है। अच्छा, फिर अच्छा, हमने शुरू किया था सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, लेकिन आगे चल के ये होगा सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। सर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट प्रोनाउन में क्या फर्क है? पहले आप मुझे बता दें। आपसे मैंने पूछा नाउन क्या है, तो आपने कहा सर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है ना, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अच्छा जी। फिर मैंने आपसे पूछा था बताइए प्रोनाउन क्या होता है, तो आपने मुझे बताया कि सर वी यूज प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ अ नाउन। हम नाउन की जगह पर प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा अगर अली लिखा होगा तो अली का प्रोनाउन क्या होगा? आपने कहा सर ही। अच्छा, ये ही बेसिकली सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और जब हम अली का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आपसे पूछे तो वो क्या होगा? सर हिम। तो ये आप अली का फिर क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो जब प्रोनाउन भी हमारे पास सात और सब्जेक्ट भी सात, तो हमने उसको नाम दे दिया सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अच्छा, सब्जेक्ट प्रोनाउन की तादाद सात है, लेकिन सब्जेक्ट की तादाद आप लातादाद भी कर सकते हैं। वैसे सब्जेक्ट की तादाद कुछ लोग कहते हैं कि 11 है। जैसे सात आपके ये हो गए, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और तीन चार आपके ये हो गए, somebody, something, somebody, समथिंग, या एनी प्लेस, एनी एनिमल, एनी थिंग और एनी नेम। वो कहते हैं ये चार भी सब्जेक्ट्स है, तो ये 11 हो गए। इस तरह से मिला के कुछ डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट बातें लिखी हुई है स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। जैसे कि एनी नेम हो गया, एनी थिंग हो गया, एनी प्लेस हो गया, एनी एनिमल हो गया। ये दे ऑल कैन बी सब्जेक्ट, दे ऑल कैन बी ऑब्जेक्ट, बट दे कैन नॉट बी सब्जेक्ट प्रोनाउन, दे कैन नॉट बी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ठीक है। फिर इसके अंदर हमने फर्स्ट पर्सन को डिस्कस किया था, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है, सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है। यू आर माई वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट, दैट्स वाई यू आर टेकिंग
वाई एक्स्ट्रा क्लास? सुबह आप अपनी नींद खराब करके आप सुबह 9-10 बजे क्लास ले रहे हैं, इट मींस यू आर रियली इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग योर इंग्लिश लैंग्वेज। और जहां मुझे स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट नजर आता है तो मेरा इंटरेस्ट डबल हो जाता है, ठीक है ना? इवन आई स्लेप्ट एट 5 a.m. but I asked my wife to wake me up at 10 or before 10. So when I woke up in the morning, I shouted, यार तुमने मुझे उठाया नहीं। पहले ही क्या हो गया? मैं कहा यार तो क्लास सी गई तो अभी 9 बज रहे। मैं कहा बस अगर मैं अभी सो गया तो फिर मैं नहीं उठ पाऊंगा। So I just got up, had a good shower, took solid breakfast, and then I am taking your class. I never skip my breakfast before class. Now after your class, I will have second shift. ठीक है ना? फिर ये हमने एक एक्सरसाइज की थी, एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी होगी, दैट विल इम्प्रूव योर कॉन्सेप्ट, राइट, अबाउट सब्जेक्ट प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, आंसर्स की भी दी है। फिर सबसे अहम टॉपिक हमारा शुरू हुआ, दिस इज अवर फोर्थ लेक्चर, मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। मैं चाहूंगा, मैंने आपको टाइम दिया है 9 से 10 से 12, अब मैं चाहूंगा कि आप लोग जल्दी फ्री हो जाए, ठीक है ना, मेरी सारी बातें खत्म हो जाए। मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब, आखिर में क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे, आप यू कैन आल्सो आस्क क्वेश्चंस। अगर अभी क्वेश्चंस आप लोग करते रहेंगे तो फिर लेक्चर ही आगे नहीं बढ़ेगा। वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपने वर्ब के मिजाज को समझ लिया, यू विल फेस नो प्रॉब्लम। इफ यू अंडरस्टैंड वर्ब, I'm telling you that you will understand the essence of English, because without verb, English does not come into being. If you don't have a verb, there is no English. Huh? So verb is very important in your life. This is very important, right? Verb is a word which shows action or state. It tells us about time. It also describes the situation. Main verb, state verb and action verb. मेन वर्ब दो तरह के होते हैं बेटा, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। जैसे अभी जो हमारे रिसेंटली लेक्चर्स हुए इस वीक, वो स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब पर ही थे। मैंने आपसे देख लिया जितनी बातें शुरू में की है, आगे चल के मैंने उन सारी बातों को डिस्क्राइब किया है, ठीक है ना। मेन वर्ब के ऊपर अगर स्टेट वर्ब है तो हमने स्टेट वर्ब पे बात करी, एक्शन वर्ब पे बात करी, तो आज की क्लास में भी बात हो जाएगी। बेटा जब एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है, जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स, जब एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब आता है तो याद रखिएगा उसकी जिम्मेदारियां जो होती है वो होती है दो। पहली जिम्मेदारी टाइम, देखो ही राइट्स अ लेटर, ही रोट अ लेटर। पहली जिम्मेदारी क्या नजर आ रही है? टाइम। राइट्स और रोट क्या डिफरेंस है? प्रेजेंट एंड पास्ट। he is at home, he was at home, present and past। पहली जिम्मेदारी जो क्लिक कर रही है दिमाग में, सर ये टाइम चेंज हो रहा है, टाइम की जिम्मेदारी है पहली। दूसरी जिम्मेदारी इसकी होती है या तो एक्शन को जाहिर करेगा या स्टेट को, किसी एक चीज को जाहिर कर सकता है। he writes a letter, he is at home, पहले सेंटेंस में एक्शन है, दूसरे में स्टेट है, और एक में प्रेजेंट चल रहा है, एक में पास्ट। यानी कि वर्ब इज अ वर्ड which shows action or state, it tells us। हेलो, हाँ बेटा क्या हुआ? क्लास चली 12 बजे, खैरियत? अच्छा, 12 बजे फारिग हो गया। ओ माय फ्रेंड कॉल, बाइक खराब हुई भी है, टो करने के लिए आ जाओ। दोस्त भी बड़े अच्छे होते हैं। ब्लड चाहिए तो अरे यार ब्लड ले आओ, उसे पता है दोस्त है, दोस्त लेकर आएगा कहीं ना कहीं से, नहीं आएगा तो आखिर में अपना दे देगा। Auxiliary verb. Auxiliary verb tells us about time. They help us to make negative and question। अब देखिए बेटा, auxiliary verb के ऊपर सबसे अहम बात आ रही है, इस अभी मेन वर्ब आगे चल के फिर आएगा। अगर आपके पास सेंटेंस में दो वर्ब्स आ जाए, अभी एक वर्ब की बात हो रही थी, ऊपर देखें दोबारा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जिम्मेदारियां दो थी। अब आपके पास जिम्मेदारियां मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मैंने कहा गोरे ने कर दी है, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। when you have got two verbs in a sentence, now responsibilities have been distributed। auxiliary verb का काम है टाइम, याद रखिएगा। और देयर आर 3 auxiliary verbs। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको मैंने पहले भी बताया हुआ है,
दोबारा बता रहा हूं that there are only three auxiliary verbs, do, be and have. Do, be and have, और do, be and have को खोलते हैं तो हम लोग क्या बन जाते हैं, वो do, does, did, be, is, am, are, was, were, been, have, has और had. और इन सब के बाद हम मुख्तलिफ वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं. do के बाद फर्स्ट फॉर्म, be के बाद verb ing, have के बाद थर्ड फॉर्म. सही है सर, बातें तो आपकी सही है, सही लग रही है, बातें हमारी सारी सही होती है बेटा. फिर उसके बाद हमने जब ये बात हमने समझा दी, सिर्फ इस बात को समझाने के बाद कि देखो डू डस के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, इज एम आर वाज वर और बीन के बाद वर्ब आईएनजी आएगी, हैव हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म आएगी. फिर हमने एक एक्सरसाइज की थी, जैसे आई एम, बताओ क्या आएगा, राइट आएगा, राइटिंग आएगा, रोट आएगा. तो आपने कहा आई एम राइटिंग. Did you write? Have you written? He is not writing. Auxiliary verb को focus करो. Does he write? Do you write? Were they writing? Has Sarah written? अभी ये PDF आपको क्लास के बाद पूरी कंपाइल्ड करके मैंने फाइनल कर दी, बस मुझे भेज दी आपको. तो जस्ट आफ्टर क्लास में भेज दूंगा, फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं खुद से भी. ठीक है ना. फिर ये एक इसके अंदर एक और वैरायटी थी कि यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब्स मिसिंग है लेकिन वर्ब्स लिखे हुए. तो बताओ क्या आएगा, जैसे गोइंग आ रहा है, सर आर यू, हैव यू डन योर वर्क, थर्ड फॉर्म आ रही है. ही कॉल यू एवरी डे, प्रेजेंट की बात हो रही है, डज ही कॉल यू एवरी डे. डैश शी कॉल यू लास्ट वीक, पास्ट की बात हो रही है, फर्स्ट फॉर्म आ रही है, डिड शी कॉल यू लास्ट वीक. ठीक है ना, इसको फिलअप कीजिएगा. फिर ये हमने एक और प्रैक्टिस की थी कि आप एक सेंटेंस को 12 टेंसेस में बनाएं. तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि जब हमने ये बात पढ़ी तो हमने इस बात से ये बात समझ ली थी कि प्रेजेंट में जब ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, इज एम आर, पास्ट में जाएगा तो वॉज वर, परफेक्ट में जाएगा तो बीन. यही बात मैंने अभी आगे वाले लेक्चर्स में फिर एक्सप्लेन की थी. ठीक है ना. फिर ये एक्सरसाइजेस आई, एक्सरसाइजेस हमने शुरू में बहुत की थी ताकि बात क्लियर हो. अच्छा, फिर हमने एक बात और करी, बड़ी अहम बात थी है. जैसे जो ग्रीन से ना बेटा वो आपका लेवल 1 है, और जो येलो से वो आपका लेवल 2 में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. लेकिन है ये बुनियाद, है ये बेसिक. और आप लोग देखिएगा व्हेन यू स्पीक इन इंग्लिश यू कम अक्रॉस टू मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स. जब आप इंग्लिश बोलते हैं ना तो मॉडल वर्ब्स आपकी जबान पर आते हैं. देख ले मॉडल वर्ब्स आप, शुड और टू, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, विल, शैल, वुड, ये सब आपकी जबान पर आते हैं. सर मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मैंने अभी पहले ऊपर वाली पहली फॉर्मेशन देखे वापस से. सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब, ये बहुत लिमिटेड फॉर्मेशन है. ये प्रेजेंट सिंपल अफर्मेटिव, पास्ट सिंपल अफर्मेटिव, बस इससे ज्यादा इसकी कोई औकात नहीं है, पहली फॉर्मेशन जो है. लेकिन जो दूसरी फॉर्मेशन है तमाम टेंसेस में यही चलती है, तमाम टेंसेस में. इवन प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट पास्ट सिंपल के नेगेटिव में भी यही फॉर्मेशन आती है. ठीक है ना. ये तो ये ग्रीन वाले जो ये टेंसेस है. येलो वाला मॉडल वर्ब्स. सर मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, मॉडल वर्ब्स की अपनी मीनिंग्स होती है. यकीन नहीं आ रहा, ये देखो, अगर मैंने शुड लगाया, कैन लगाया, मे लगाया तो मेरे जुमले की मीनिंग्स बदलती हुई नजर आ रही है. ये टाइम की बात नहीं करते जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स करते, ही इज गोइंग, ही वाज गोइंग. ऑक्सिलरी वर्ब का काम है टाइम को बताना. मॉडल वर्ब्स टाइम की बात नहीं करते. मॉडल वर्ब्स हैव देयर डिफरेंट मीनिंग्स. कोई एबिलिटी की बात करता है, कोई ऑब्लिगेशन की बात करता है, कोई पॉसिबिलिटी की बात करता है. शी शुड पे टैक्स, शी कैन पे टैक्स, शी मे पे टैक्स. ठीक है ना बेटा. और मॉडल वर्ब्स में एक अच्छी बात ये कि मॉडल वर्ब्स की सिर्फ और सिर्फ 4 फॉर्मेशन है. यहाँ पर मैंने अभी 3 लिखवाई थी. मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी, मॉडल वर्ब प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. और अगर आप इसको जरा गौर से देखें तो आपको इसके अंदर प्रोग्रेसिव भी नजर आएगा. वर्ब आईएनजी, ये देखें, सर ने हमेशा आपको सिखाया कि वर्ब आईएनजी से पहले बी आता है, थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हैव आता है. देख ले वो चीज यहाँ पर भी फॉलो हो रही है. प्रोग्रेसिव, परफेक्ट, सिंपल. तो बच्चों का अक्सर एक सवाल उठता है कि सर ये जो मॉडल्स है इसमें सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट सिचुएशंस होती है. बिल्कुल होती है. प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर भी होता है. कैसे होता है ये हम लेवल 2 में जब डिटेल्स में जाएंगे तो वहां पढ़ लेंगे. लेकिन कम से कम मॉडल्स की फॉर्मेशंस तो दिमाग में रखें ना, कि मॉडल की फॉर्मेशंस क्या है. बता देता हूँ. ये तीनों फॉर्मेशंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की बात कर सकती है. कैसे करेंगी जानने के लिए अगले एपिसोड्स देखिएगा. फिर हमने पूछा एक सवाल, बेटा टेंसेस और मॉडल्स में क्या डिफरेंस है. तो बेटा टेंसेस टॉक अबाउट रियलिटी, मॉडल्स डू नॉट टॉक अबाउट रियलिटी.
मॉडल्स टॉक अबाउट ऑब्लिगेशन, जैसे तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, इसका मतलब तुम मेहनत करते नहीं हो। अगर मैं कहता तुम मेहनत करते हो, प्रेजेंट सिंपल। तुम्हें मेहनत करनी चाहिए थी, इसका मतलब तुमने की नहीं मेहनत, ठीक है ना। तुमने मेहनत की थी, पास्ट सिंपल 100%। हम डिस्कनेक्ट होने वाले हैं, उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। हम दोबारा कनेक्ट होंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, दोबारा उसी लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप दोबारा कनेक्ट हो जाइए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।